नेटवर्क, ठीक है। तो then internet means what? Network of network. Internet means what? Network of network, ठीक है। When a network, mind you, not any device, when a network is connected to another network, it creates what? Internet. Suppose that line is connected to man is connected to WAN is connected to LAN, ठीक है। LAN is connected to man is connected to LAN, ठीक है। तो if such type of network is coming, means that is your what? Internet. That is your internet, ठीक है। तो इंटरनेट इज क्लियर, फुल फॉर्म इज क्लियर, ठीक है। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट is the ocean of knowledge. Internet is known as the ocean of knowledge. If you want to get any type of information, ठीक है, for that we need what? Internet. We need internet, ठीक है। So many services we are looking today, that is for our personal use, professional use, for every kind we use what? Internet, ठीक है। तो let's see what's your book say, ठीक है। तो internet and its component, as we all know that internet is a computer based worldwide information network. It can be assumed as the example of WAN. Internet is the best example of WAN. Internet is the best example of WAN, that is your wide area network, ठीक है। whenever we talk about the internet means कि and a network, that is your WAN, wide area network. Next, the internet is composed of a large number of smaller interconnected network. Internet is the combinations of networks. ठीक है। Means as we know that there are three types of networks: LAN, MAN and WAN. LAN is connected to MAN is connected to WAN is connected to MAN is connected to LAN. If such type of connections are coming, that is what? Internet, ठीक है। These networks may link 10, hundreds or thousands of computers, enabling them to share information with each other and to share information, ठीक है। These networks connected 10, 100, thousands, millions, or you can say that there is no any exact data for the combinations of computers or any other devices, ठीक है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है एग्जैक्ट जो हम बता सकें कि कितने सारे कंप्यूटर्स या फिर कोई और डिवाइसेस कनेक्टेड है। कोई नहीं एग्जैक्ट इसका डाटा बता सकता है कि कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है। जैसे अब एग्जांपल देखो, जैसे हम ही क्या कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर बाय यूजिंग आवर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह ना जाने कितने लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें इंटरनेट को यूज किया जा रहा है और उसको कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता कितना उसमें यूज किया, कितने लोग उस कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। See, the internet has made it possible for people all over the world to effectively and inexpensively communicate with each other, ठीक है ना। जैसे आप बात कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट अगर इंटरनेट की सर्विस देखा जाए तो इंटरनेट आजकल सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन पर्पज में यूज किया जा रहा है। किस पर्पज में यूज किया जा रहा है? कम्युनिकेशन पर्पज। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेंडर सेंड द सिग्नल्स एंड रिसीवर receive the signal, ठीक है। सेंडर सेंड द सिग्नल एंड रिसीवर रिसीव द सिग्नल्स, दैट इज योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी क्या करता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। मैं बात कर रहा हूं और क्या कर रहे हो? आप सुन रहे हो। दैट इज आवर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इंटरनेट इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज आल्सो। सी, online traditional broadcasting media such as radio and television, the internet is a decentralized system. Each connected individual can communicate with anyone else on the internet, can publish idea and can sell products with the minimum overhead cost, ठीक है। internet, with the help of internet we can sell purchase our products, ठीक है। कुछ भी चीज खरीदना है, बेचना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कम्युनिकेशन वगैरह कुछ भी अगर आप करना चाहो तो उसको आप क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। Internet is not a thing which you can touch and feel. It is made up of many components offering various different types of services. Let us talk about these internet components in coming lines, ठीक है। अब इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको जानने होंगे, सीखने होंगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज कमिंग योर www. फर्स्ट टॉपिक इज कमिंग योर www. See what is this www?
WWW, that is known as what? World Wide Web, World Wide Web, ठीक है. In short it is known as web, in short it is known as web, ठीक है ना. Before to start this topic I want to just introduce the history of the internet, history of the internet, ठीक है. तो see, in 1969 first internet was created, first not internet, you can say the network was created in 1969. In 1969 first network was created, that the name of that network is ARPANET. The name of that network is ARPANET. Its full form is Advanced Research Project Agency Network, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है. पहला जो आपका इंटरनेट क्रिएट हुआ था, नेटवर्क क्रिएट हुआ था, ठीक है, 1969 में, उसका नाम दिया गया था ARPANET. उसका नाम क्या दिया गया था? ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, दैट इज योर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है. पहला जो था, ठीक है, वहां पर इसमें 4 कंप्यूटर, मैक्सिमम 4 कंप्यूटर आपके कनेक्ट हुए थे एक दूसरे से, ठीक है. यूएस जो डिफेंस है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिफेंस था उसने इसका यूज किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है. फर्स्ट टाइम एक नेटवर्क क्रिएट किया गया था जिसका नाम दिया गया था ARPANET, ठीक है. फिर लेटर ऑन, ठीक है, फिर 1980s, ऑलमोस्ट 1980s में जब आया तो वहां पे बना आपका NSF-NET. क्या बना आपका? NSF-NET, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क के नाम से आपका बना था NSF-NET 1980s में. 1980s, इसको एपोस्ट्रोफी इसके साथ आप दिखा सकते हो, ठीक है. 1980s में NSF-NET बना, ठीक है. लेटर ऑन इन 1989, ठीक है, जब www का इन्वेंशन हुआ तब हमारे पास क्या आया था? इंटरनेट आया. फिर हमारे पास क्या आया? इंटरनेट आया, ठीक है, जिसको आप जानते हो इंटरनेट मींस इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसको आप कहते हो इट इज द इट इज नॉट लुकिंग 1989, that is what? इंटरनेट. 1989 में आपका क्या आया? इंटरनेट बन के आपका आया, ठीक है. तो स्टार्ट कहां से हुआ था? 1969 में फर्स्ट आपका जो नेटवर्क क्रिएट हुआ था उसका नाम क्या था? ARPANET, ठीक है. इट्स स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है. ये कभी कभी पूछता है इसका डेफिनेशन. 1980s में जो 80s में आपका एक और नेटवर्क क्रिएट हुआ था, कुछ और कंप्यूटर्स ऐड हो गए, कुछ उसमें टेक्नोलॉजी और ऐड कर दिया गया, कुछ नए फीचर्स और ऐड करके इसका नाम दे दिया गया NSF-NET. क्या नाम दे दिया गया? NSF-NET, ठीक है. फिर 1989 में, ठीक है, जब www का इन्वेंशन हो गया, इसका इन्वेंशन हो गया, www का इन्वेंशन हो गया, ठीक है. मींस कि ये आपको मल्टीमीडिया फीचर्स के लिए इसको यूज किया जाता है. मल्टीमीडिया फीचर जब आपके नेटवर्क्स में ऐड हो गए, ठीक है. इसको इन्वेंशन किसने किया था? आप लोगों को मालूम भी होगा, टिम बर्नर-ली, सर टिम बर्नर-ली और उनकी पूरी टीम ने मिलके www का इन्वेंशन किया, ठीक है. जब www इन्वेंशन हुआ तो आपके पास क्या आ गया? मल्टीमीडिया आ गया. क्या आ गया? मल्टीमीडिया, ठीक है. अब तक यहाँ पे जो भी चीजें यूज होती थी, खाली किसके लिए यूज होता था? टेक्स्ट के लिए यूज होता था. किसके लिए यूज होता था? टेक्स्ट के लिए, ठीक है. लेकिन जैसे ही www का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, जब वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास आया, मतलब कि वेब आया, तो उसमें मल्टीमीडिया ऐड हो गया. क्या ऐड हो गया? मल्टीमीडिया, ठीक है. मल्टीमीडिया जब आपका ऐड हो गया तो उसमें आप ऑडियो, टेक्स्ट, पिक्चर, एनिमेशन, सारी चीजें, हाइपरलिंक्स वगैरह सारी चीजें हम यूज करने लगे, तब जाके उसका नाम क्या बन गया? इंटरनेट हो गया. और सबके लिए फैमिलियर हो गया. माइंड यू, एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा, यहाँ तक जो था 1969, जो इसको बड़े जो भी डिफेंस वगैरह होता था, यूनिवर्सिटीज वगैरह में इसको यूज किया जाता था, बड़े बड़े रिसर्च में इसको यूज किया जाता था 1969 में, 1980 तक. लेकिन जैसे ही आपका ये मल्टीमीडिया फीचर्स इसमें ऐड हुआ, ये सबके लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया. जो भी आपके ऑल ओवर, मतलब कि पब्लिकली इसको क्या कर दिया गया? ओपन कर दिया गया. सब लोग इसको क्या करने लगे? यूज करने लगे 1989 में, ठीक है. एक चीज और ध्यान देंगे आप, ठीक है, कि इंडिया में कब इंटरनेट लॉन्च हुआ था, ठीक है. तो 15 अगस्त 1995 इंडिया में इंटरनेट लॉन्च हुआ था आपका 15 अगस्त 1995. जो प्रेजेंट उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट अटल बिहारी वाजपेयी थे शायद, ठीक है. 1995 में तभी आपका इंडिया में क्या हुआ था? इंटरनेट लॉन्च हुआ था, ठीक है. फर्स्ट टाइम BSNL ने लॉन्च कराया था, BSNL, ठीक है. BSNL आप जानते भी होंगे आप सब लोग, ठीक है. BSNL स्टैंड्स फॉर भारत संचार निगम
लिमिटेड। ठीक है, पहली बार इंटरनेट इंडिया में लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 1995 में। किसने कराया था? बीएसएनएल ने, विद द हेल्प ऑफ बीएसएनएल, जो आपका आईएसपी बना था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो हिस्ट्री क्लियर है आपको, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, कहां से चला, कब कहां तक पहुंचा। ठीक है, और आज भी हम इंटरनेट ही यूज करते हैं, आगे फ्यूचर इसका जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अब चलो मेन टॉपिक पे अपने आते हैं, दैट इज योर WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, सी इन शॉर्ट इट इज नोन एज वेब, इन शॉर्ट इट इज नोन एज वेब। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इस जो इंटरनेट फीचर था, आपका नेटवर्क का जो फीचर था, ठीक है, 1969 और 1980 तक उसमें टेक्स्ट आप खाली यूज करते थे। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह ही यूज किया जाता है जनरली। लेकिन जब 1969 आया, 1989 आए, ठीक है, सर टिम बर्नर्ली ने उसमें क्या ऐड कर दिया, मल्टीमीडिया फीचर्स यूज कर दिया। ठीक है, तो सी इसका डेफिनेशन क्या हुआ? ठीक है, WWW इज अ सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, एंड वीडियो, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। ठीक है, WWW इज द सिस्टम, मतलब मींस कि विद द हेल्प ऑफ WWW we can use text, audio, video, picture and animations, you can say also, ठीक है, animations in over the internet पे अगर आपको क्या करना है, जो भी आपके टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, पिक्चर्स है, एनिमेशंस है, इन सबको रिट्रीव करना है, इन सबको यूज करना है, तो फॉर दैट वी यूज व्हाट? WWW. In short, it is known as what? Wave. It is introduced by whom? सर टिम बर्नर ली। सर टिम बर्नर ली ने इसको क्या कराया था? इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, तो दिस इज योर व्हाट? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ बुक में भी दिया है जो मैंने आपको बताया। डिफरेंस, एक चीज यहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन WWW एंड इंटरनेट। ठीक है ना, कहीं कहीं कंफ्यूज होते हैं लोग कि कहता है कि WWW ही इंटरनेट है। ठीक है, और लोग हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो इसको ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, WWW इज द फीचर ऑफ द इंटरनेट, नॉट द इंटरनेट, नॉट द इंटरनेट। WWW इज द फीचर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट में ही WWW है। ठीक है, ना कि WWW ही आपका इंटरनेट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, WWW इज द फीचर ऑफ इंटरनेट, नॉट द इंटरनेट। ठीक है, चलो मूव फॉरवर्ड। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कुछ आपके टर्मिनोलॉजी या टर्म्स हैं जो आपके इंटरनेट से रिलेटेड हो गए। ठीक है, अभी खाली ओवरव्यू दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये एक एक टॉपिक बनता चला जाएगा। ठीक है, और सब कुछ आपको कवर करना है। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड further, it will be good if we briefly talk about internet terminology. In the following lines we are introducing some basic terms related to internet. ठीक है, कुछ आपके बेसिक टर्म्स आ रहे हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड है, उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज योर कमिंग क्लाइंट। फर्स्ट टर्म इज कमिंग क्लाइंट। क्लाइंट मींस आप लोगों को पता भी होगा, क्लाइंट 9th में आए भी है। क्लाइंट मींस होता है वी पीपुल, और यू कैन से दैट यूजर। क्लाइंट पीपल मींस व्हाट? यूजर, जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, यूज करता है, उसी को क्या कहा जाता है? क्लाइंट कहा जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई से वी पीपुल। ठीक है, सपोज दैट आई एम यूजिंग द व्हाट? कंप्यूटर सिस्टम मींस आई एम अ क्लाइंट। इफ यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम मींस यू आर अ क्लाइंट। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम देन यू आर अ क्लाइंट। ठीक है, सर्वर, नेक्स्ट इज योर सर्वर। ठीक है, दिस वर्ड इज, ये जो वर्ड आपका बार बार आपके सामने आने वाला है, सर्वर। सर्वर मींस व्हाट? सर्वर इज अ स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर। सर्वर मींस व्हाट? स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर इन द सेंस कि which have the highest storage capacity. The computer which has the highest storage capacity is known as what? Server. Is known as the server. ठीक है, I am repeating my definition once again. Server. Server means what? It is a strong computer. It is a strong computer that is used to store large amounts of information. That is used to store large amounts of information is known as what? Server. ठीक है, next is your web page. Next is your web page. The page which is appeared on the internet. The page which is appeared on the internet is known as what? Web page. The page which is appeared on the internet is known as what? Web page. A web page contains text, audio, video, picture, animation. ठीक है, etc. ठीक है, जो भी वेब पेज, जो पेज आपको कहां दिखाई देगा? ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो आपको दिखाई देता है उसी को आप क्या कहते हो? पेज कहते हो। ठीक है, ये आपका डिजिटल पेज भी होता है। ठीक है, और वेब पेज कंटेंट्स टेक्स्ट,
ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, एनिमेशंस, ठीक है, ये सारी चीजें। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर हाइपरलिंक, दैट इज योर हाइपरलिंक, ठीक है, कि जो वेब पेज होता है वो क्या होता है, द पेज विच इज अपीयर्ड ओवर द इंटरनेट इज नोन एज द वेब पेज, एंड अ वेब पेज कंटेन्स टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, एनिमेशन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीजें वो कंटेंट करता है। एंड हाइपरलिंक आल्सो, एंड हाइपर लिंक्स आल्सो, ठीक है, हाइपर लिंक, ठीक है, ये वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, हाइपरलिंक होता क्या है, ठीक है, इट इज यूज्ड टू ओपन द नेक्स्ट वेब पेज, इट इज यूज्ड टू ओपन द नेक्स्ट वेब पेज, ठीक है। सपोज दैट अगर आपको हाइपरलिंक कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे उसको जानो आप। हाइपरलिंक जो टर्म आ रहा है तो ये बार बार आएगा, तो इसको आप लोग जान लो, ठीक है, और सीख लो, ठीक है, हाइपर लिंक, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक इज यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू द अनदर वेब पेज। हाइपरलिंक इज यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज। अगर आप एक वेब पेज पे हो, अगर आप चाहते हो दूसरे वेब पेज पे आप चले जाओ, तो उसके लिए आपको क्या 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 कहां पे क्लिक करना होता है, हाइपरलिंक पे। कहां पे क्लिक करना होता है, हाइपरलिंक, ठीक है। और हाइपरलिंक को आप आइडेंटिफाई करते हो आप, ठीक है, जैसे आपका राम, ठीक है, राम है, ठीक है, और ये हाइपरलिंक है, मैं इसको क्या कह रहा हूं, हाइपर लिंक। हाउ विल यू जस्ट आइडेंटिफाई कि गिवन राम इज हाइपर लिंक, द कलर ऑफ हाइपर लिंक विल बी ब्लू, विल बी ब्लू। जो भी आपका हाइपर लिंक होगा उसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। उसके नीचे अंडरलाइन होगा, उसके नीचे क्या होगा, अंडरलाइन, ठीक है। जैसे ही आप अंडरलाइन अगर आपको दिखता है उसका कलर ब्लू दिखता है, ठीक है। और थर्ड आइडेंटिफिकेशन इज, ठीक है, नॉर्मल हमको पता है कि जो कर्सर होता है उसका सिंबल कैसा होता है, एरो होता है, कैसा होता है, एरो होता है। लेकिन जैसे ही आप किसी भी हाइपर लिंक पे जाओगे आप, तो जो उसका सिंबल होता है वो हैंड सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हैंड सिंबल में, ठीक है। किसी के आप हाइपर लिंक पे कर्सर अब अपना लेके आओगे तो जो उसका नॉर्मल जो एरो का शेप होता है वो क्या होता है, नॉर्मल कर्सर का जो शेप होता है वो एरो शेप में होता है, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप किसी हाइपरलिंक पे जाते हो, ठीक है, तो हैंड सिंबल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, हैंड सिंबल में वो आपको दिखने लगता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप किसी भी हाइपरलिंक को, ठीक है, किसी वेब पेज में कैसे आपका हाइपरलिंक है कि नहीं है, ठीक है। जैसे राम है, राम का कलर क्या है, ब्लू है, ठीक है, और उसके नीचे अंडरलाइन होगा, ठीक है। और जो नॉर्मल कर्सर जो होता है एरो शेप में होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैंड सिंबल में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और हाइपरलिंक होता क्या है, हाइपरलिंक इज यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू द अनदर वेब पेज, ठीक है, आर फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन इन द सेम वेब पेज। एक ही वेब पेज में अगर आप मूव करना चाहते हो, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या फिर बॉटम टू टॉप जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। या फिर एक वेब पेज से आप क्या कर सकते हो, दूसरे वेब पेज पे आपको वो मूव करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, हाइपर लिंक यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज और हाइपरलिंक एंड अ वेब पेज, ठीक है, द पेज विच इज अपीयर्ड ओवर द इंटरनेट, द पेज विच इज अपीयर्ड ओवर द इंटरनेट इज नोन एज वेब पेज, एंड अ वेब पेज कंटेन्स व्हाट, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, एनिमेशंस, ठीक है, एंड व्हाट, हाइपरलिंक एंड हाइपरलिंक, ठीक है। तो दैट इज योर व्हाट, वेब पेज, ठीक है। Website, next is your coming website, the collections of related web pages, the collections of related web pages is known as website, the collections of related web pages is known as what, website, ठीक है। एक साथ जब क्या होता है, बहुत रिलेटेड वेब पेजेस एक साथ जब कंबाइन कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है। एग्जांपल www.devaslibalia.com, www.devaslibalia.com, ठीक है, इट इज अ वेबसाइट, इट इज अ वेबसाइट, व्हाट, www.devaslibalia.com, ठीक है। तो इन दिस वेबसाइट वी विल सी द पेजेस रिलेटेड टू व्हाट, टू whom, देवस्ली विद्यापीठ, रिलेटेड टू देवस्ली विद्यापीठ, ठीक है। तो दैट इज योर व्हाट, वेबसाइट, दैट इज योर वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट इज द कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, रिलेटेड वेब पेज, माइंड यू, रिलेटेड वेब पेजेस, ठीक है, एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेट करते होंगे जो भी वेब पेजेस होंगे, ठीक है। तो और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आप जानते भी होंगे, जैसे www.yahoo.com, www.gmail.com, ठीक है। तो जो भी आप वेबसाइट खोलते हो तो उसमें रिलेटेड वेब पेजेस ही आपको उसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग योर व्हाट, वेब पोर्टल, नेक्स्ट इज टॉपिक इज कमिंग योर वेब पोर्टल, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सीखना आप लोग क्या होता है वेब पोर्टल, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ वेब पेज विच कंटेन्स ओनली हाइपरलिंक्स, एक ऐसा आपका स्पेशल वेब पेज होता है, एक वेब पेज होता है जिसमें खाली क्या होता है, मैक्सिमम आपके हाइपरलिंक्स ही दिखाई देंगे,
मैक्सिमम आपको क्या दिखाई देता है, हाइपर लिंक। तो सच टाइप ऑफ वेब पेज इज नोन एज व्हाट, वेब पोर्टल। इस तरीके का जो भी आपको वेब वेब पेज आपको दिखाई दे जिसमें मैक्सिमम आपके क्या होता है, लिंक्स होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, वेब पोर्टल। ठीक है, जैसे कि मैक्सिमम जो भी आपका फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, वो क्या कैसा होगा, वो कैसा होता है, वेब पोर्टल ही होता है। उसमें फर्स्ट पेज में आपको क्या दिखाई देगा, लिंक्स ही खाली दिखाई देता है कि ताकि आप और वेबसाइट में अंदर जा सको। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी वेब पेजेस आपको आते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, वेब पोर्टल। ठीक है, द पेज विच कंटेंट्स hyperlinks, the page which contains only hyperlinks is known as what, वेब पोर्टल। ठीक है, मैक्सिमम आपके जो भी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें क्या जो फर्स्ट पेज आपको मिलता है वो क्या होता है, हाइपर लिंक कंटेन करता है, और उसको क्या कहा जाता है, पोर्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोर्टल, या फिर उसको वेब पोर्टल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर वेब ब्राउजर, नेक्स्ट इज योर वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग द वेब पेज, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग द वेब पेज। ठीक है, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग द वेब पेज। किसी भी वेब पेज को अगर आपको यूज करना है, ठीक है, एक्सेस करना है, देखना है उसको, ठीक है, उसको डाउनलोड करना है, ठीक है, उसको अपलोड करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर एक हमको मिलता है। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, वेब ब्राउजर, दैट इज नोन एज द वेब ब्राउजर, दैट इज नोन एज द वेब ब्राउजर। ठीक है, तो इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग वेब पेज ओवर द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट पे हो, वेब पेज आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, फॉर दैट वी नीड अ सॉफ्टवेयर दैट इज नोन एज व्हाट, वेब ब्राउजर। ठीक है, एग्जांपल्स देखो आप। ठीक है, जैसे आप बात करते हो आप गूगल क्रोम, Google Chrome, it is a what, web browser, it is our web browser, Google Chrome। ठीक है, Mozilla Firefox, ठीक है, UC ब्राउजर, आजकल इसका बड़ा नाम आ रहा है, ये चाइनीज है, ध्यान रहे, ये क्या आपका चाइनीज ऐप है, UC ब्राउजर। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसको अगर आपको मोबाइल फोन या कहीं पे भी हो तो इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउजर है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये आपके वेब ब्राउजर्स है। ऐसे तो बहुत सारे वेब ब्राउजर्स आपके बने हैं, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, टाइम खत्म होने के बाद बाबू, ठीक है, कुछ मैं कवर करता हूं। यूआरएल, नेक्स्ट इज योर यूआरएल, एक नया टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगा। यूआरएल इट्स स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इट इज द वेब एड्रेस, इट इज द वेब एड्रेस ऑफ अ वेब पेज। किसी भी वेब पेज का जो वेब एड्रेस होता है उसी को क्या कहा जाता है, यूआरएल कहा जाता है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड इट इज यूनिक, ये आपका क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, मीन्स की सारे जो भी वेब पेज होते हैं सबके लिए क्या होता है, डिफरेंट आपका एक यूआरएल डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जिसके हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, that is your URL, uniform resource locator, the web address of a web page. The web address of a web page is known as what, uniform resource locator, and it is unique for every web page. ठीक है, next is your blog, ठीक है, blog is used to post your own thoughts, view, ideas, ठीक है, over the internet। ठीक है, blog is used to post, ठीक है, your own thoughts, view, ideas, जो भी हमारे आइडियाज होते हैं, व्यूज होते हैं, थॉट्स होते हैं, उसको पोस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लॉग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ब्लॉग। ये आगे टॉपिक आएगा, इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, ब्लॉगर, ठीक है, दो जो यूज द ब्लॉग इज नोन एज द ब्लॉगर। एंड ब्लॉगिंग, द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग, अगर आप ब्लॉग लिखते हो उस प्रोसेस को ही ब्लॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, न्यूज ग्रुप, ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप ओवर द इंटरनेट इज नोन एज व्हाट, न्यूज ग्रुप is known as the news group। ठीक है, न्यूज, what is the full form of news, we all know that north, east, west and south। ठीक है, तो here also it become over the internet it becomes what, news group। ठीक है, ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप,
ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, न्यूज ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कमिंग व्हाट, ईमेल, नेक्स्ट इज कमिंग और ईमेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये भी आपको आगे आने वाला है, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस, ठीक है, टू सेंड और रिसीव ईमेल्स, टू सेंड और रिसीव ईमेल्स, और यू कैन सी द ईमेल्स ओवर द इंटरनेट, वी यूज व्हाट, ईमेल एड्रेसेस, ठीक है। एग्जांपल, ठीक है, सी देवस्थली, देवस्थली प्रिंसिपल, देवस्थली प्रिंसिपल @ gmail.com, इट इज योर व्हाट, ईमेल एड्रेस, ठीक है। इट इज आल्सो यूनिक फॉर एवरीवन, ये भी क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो टाइम हो रहा है, मैं आप लोग अनम्यूट करता हूं, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। यस, वन बाय वन एवरीवन। हाँ Sir, what is web client? हाँ, वेब द सेम थिंग, क्लाइंट एंड वेब क्लाइंट, आइडेंटिफाई करेंगे। web client, both are the same. Client means what, web users, client means what, users. Suppose that you are just connecting to internet and asking something to the web server, that is your web client, ठीक है ना। What is decentralized system? Decentralization, listen, decentralization, one by one I am just listen. Decentralization means what, just controlling everything from a single place. Hello sir. Decentralization means what, controlling all the things from a single place, एक ही जगह से सारी चीजों को आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, तो उसी प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। एनीथिंग एल्स? और सर आपने बताया कि हाइपरलिंक में जो डायग्राम होता है, अंडरलाइन होता है, तो सर वो वर्ड ब्लू होता है या फिर जो अंडरलाइन से वो लाइन है तो वो ब्लू होता है? The difference between hyperlink and link. ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैक्सिमम लोगों के पास होगा, अगर ग्रुप में आप जुड़े हो तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। 9795353517, 9795353517, ठीक है। अगर आपको अभी यहाँ क्वेरी नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे पर्सनल फोन भी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे, डिफरेंशिएट बिटवीन लिंक एंड हाइपरलिंक। यस हेलो, Yes, sir. hyperlink and the link, ठीक है, link hyperlink, ठीक है, the link which is available on the web page, on the digital web page, that is known as what, hyperlink, that is known as the hyperlink, ठीक है। the text on which we click, ठीक है, on which we click it, then that is known as what, hyperlink, ठीक है। next, हाइपरलिंक को कैसे मतलब आइडेंटिटी कैसे पहचानना है हाइपरलिंक है? listen, don't be confused in your link and hyperlink, both are same, ठीक है, working is same, ठीक है, identification is same, ठीक है, don't be confused about link and hyperlink, both, ठीक है ना, both are same, ठीक है। next, what is Usenet? Forums. Usenet. Hello. the process of using news group is known as the Usenet, ठीक है। न्यूज ग्रुप को यूज करने को प्रोसेस को यूजनेट कहा जाता है, ठीक है। Sir, another name of internet. Which year multimedia is added to www? हाँ, in which year? 1999 to 1991, 1989 to 1991, ठीक है। in between these years multimedia is added in our internet, ठीक है। another name of internet is web portal, ठीक है। the web page which contains hyperlinks, ठीक है, the page which contains maximum hyperlink is known as the web portal. next, Hello sir. Sir, Internet Explorer. it is your web browser, that is responsible for accessing the web Sir, page. another name of internet. WAN, we can say that WAN, wide area network, the best example of internet is WAN, wide area network, ठीक है। What is 2000 CERN? हाँ, CERN. क्या कह रहे हो? Hello. CERN. I am not getting what are you saying. Name of any
Sir, another name of internet. email address. It is the unique address. It is the unique address to send or receive messages over the internet. It is a unique Sir, another name of internet. international network, or you can say that the example of internet is WAN. ठीक है? Email address, the unique address the unique address that is used to send or receive mails over the internet. Ravishankar. Anything else? SFET. Huh? SFET. सर ब्राउजर का नाम ग्राफिकल ब्राउजर। What is dark web? ग्राफिकल ब्राउजर एंड वो आप अभी ये सारे जो टर्म्स थे ना, ये मैंने खाली इंट्रोड्यूस किया है, इन सबको डिटेल में जाना है, ठीक है? तो डोंट बी बोदर, परेशान नहीं हो आप लोग। इस सभी टर्म्स मैंने बताए हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के, आगे आप देखना बुक्स, ठीक है? बुक्स में देखोगे आप तो आपको जाना होगा अंदर। Sir, dark web. Sir, what is the stand for? NSFET. NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है? 1980s में इसको क्रिएट किया गया था, NSF को, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है? आप लोग सर हाँ बोलो बोलो। ब्लॉग बता दीजिए सर। ब्लॉग इज यूज टू पोस्ट आवर आइडियाज, व्यू, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, ठीक है? जस्ट लाइक अ डायरी, इट इज इन डायरी वी यूज टू राइट आवर थॉट्स, व्यू, आइडियाज, ठीक है ना? तो सिमिलरली ओवर द इंटरनेट, इफ यू आर जस्ट राइटिंग आवर आइडियाज, व्यू, थॉट्स, फॉर दैट वी यूज व्हाट? ब्लॉग, ठीक है ना? गो थ्रू द बुक आप लोग देखना, एक बार चीजें समझ में आएंगी। और कुछ बुक में ARPANET और NSFNet के बारे में नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, बुक में सारी चीजें थोड़ी देता, वो तो आ गया टॉपिक तो उसको एक्सप्लेन आपने कर दिया। और बोलो। वेब पेज, the page which is appeared over the internet, the page which is appeared over the internet is known as what? Web page. It contains the page which is appeared over the internet. The page which is appeared over the internet is known as web page. It contains text, audio, video, picture, animation, etc. ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक में, अभी तो आज इंट्रोडक्शन था, तो थोड़ा धीरे चला मैं, आप लोग इसको पढ़ के बैठना आप लोग, ठीक है? थोड़ा सा स्पीड अप हम करेंगे, ठीक है? टाइम कम है। इन अ वीक